Okay, so our next topic in signal and system course is a continuous time Fourier transform. Till now, we have analyzed periodic signals. We saw that we can represent a periodic signal in sum of complex harmonical related exponential signals. But what if a signal is not a periodic? Then can we calculate this frequency spectrum? So today's discussion is totally based on that. Uh, we also saw how this representation can be used in describing effect of LTI systems on signal. Periodic signals have complex exponential building blocks that are harmonically related. For aperiodic signals, they are infinitesimally close in frequency. Means now frequency AK component should be very close in a periodic signal. We will see in a minute. And representation term is linear combination takes form of integral rather than sum. When quantities are very close, like in continuous signal, we always use integration. And if those quantities are at they are sparse, then we can use sum. So close quantities are always integrated, not summed. We'll see. Okay, let's start. How can we construct the uh, uh, analysis and synthesis equation for Fourier series, Fourier transform? Sorry. Uh, as you know, in previous classes, we transformed this signal and computed its AK coefficients. Right? It's a periodic signal, and we calculated its AK coefficients, which were equal to this is the this signal can also be represented mathematically as well, like this one. It is 1 from minus t1 to t1, so it is 1 from minus to t1, and 0 between other. Say so that is 0 between when t1 is less than absolute t and less than t by 2, right? So the AK coefficients were like this, right? Now, for example, if you substitute k omega naught with omega as a running variable or a continuous variable, for example, then this t must be multiplied here. Then tak is equal to 2 sine omega t1 upon omega, right? Now consider that this tak is envelope. It has nothing to do with, for example, this signal for AK coefficient, for example, right? This would be a sinc function. For example, if you increase this frequency, right? For example, k omega naught. Now, for example, you want now focus. Let's first focus on this t1. What does t1 do with these samples? For example, this t1 is total time period is 4 times t1. If you plot this signal, then what would you get? You would get impulses like this one, right? At 2 omega naught, this signal must be 0. So for example, if you increase time period, so you can see the total time period, the ratio of 0 value is increasing as compared to this value where signal is non-zero. So means this now from t by 2 to t value is increasing, and we want to see the effect of that signal on the AK coefficients. Now you can see if the total time period is 8 times t1, then number of samples are coming closer together. Now if you focus on only positive axis, there are only 3 values, but if t is equal to 8 t1, these values are coming closer, right? And if t is equal to 16 t1, then you can see the values are coming more close. And we say if t increase very large, when t approaches to a large value, right? When t is very much greater than t1, then this signal will be more of like a continuous time wave, right? And what would be the effect on this signal? This would be like this. So from minus t1 to t1, this would be 1, right? From minus t1 to t1, this would be 1. And because non-zero has more ratio of signal, it would be like a continuous time signal.
it would repeat after certain time interval. But for instance, if you see, if t is for example 1000 times t1, so this, the ratio of this non-zero value to the zero would be very similar. It would be more like a periodic signal, right? We can conclude that if t is increasing, then this omega naught would be becoming very narrow and narrow, right? Angle of frequency would be reducing, and when t approaches to infinity, this these AK coefficients would be more like a continuous time envelope, right? And we know that in aperiodic signal looks like this. For example, this is an aperiodic signal which never repeats, right? This is an expression. This is a signal. This is an aperiodic signal, right? Because it is not repeating after a certain interval of time. Now, what we are doing, we are forcefully making it a periodic signal. We say, because this is an aperiodic signal, from minus infinity to infinity, there is no chance it would repeat. But we say, for example, if we say it would repeat itself after infinity, then we can represent this signal like this one, and its time period, currently time period is infinity, right? So if we represent it as a periodic signal which repeats after infinity, then we have represented it x cap tau, x cap t. See, okay. So if we wish to compute the Fourier coefficient of this signal, right, then we can represent it like this, right? So if it's a periodic, then we can write in this form. And AK coefficients are 1 over t from over a one time period x tilde t e to the power minus j k omega naught t dt. Now, as we now if we multiply t with this AK, then this will be t AK. Now, what is the time period of this signal? As we increase the time period, this signal, this zero value signal would be increasing, right? When this t becomes infinity, that would be more like of this signal, right? We discussed about it. So the gap between these two consecutive non-zero values would be increasing and increasing as t increases. When t becomes infinity, you see, I have assumed when t becomes infinity, then there would be no difference between x tilde t and x of t, right? So we can represent this expression like this. So AK is equal to 1 over t from minus infinity to infinity x of t to the power j k omega naught t dt, right? We'll come to that, that what does this mean, why we are calculating it now. And now we want, for example, I said if we multiply this t now with AK, what would be the effect? So TAK, now we want to write TAK as x of j omega. So x of j omega is equal to from minus infinity to infinity x of t e to the power minus j omega t dt. Now what about AK coefficient? So AK is equal to 1 over t x of, now we are plotting k omega naught, right? X of j omega, remember this x of j omega. Now we want to substitute this j omega, this omega with k omega naught, right? Then what would we get? X of t to the power minus j k omega naught t, right? X of t to the power minus j k omega naught t. So our AK is equal to, बेटा देखें, हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई ये देखिए हमारे पास जो पीरियोडिक सिग्नल, अपीरियोडिक सिग्नल है, अगर इसका हम टाइम पीरियड बढ़ाते जाएंगे, हम कहते हैं कि ये सिग्नल हमारे पास अपीरियोडिक है, मतलब ये इन्फिनिटी तक तो रिपीट नहीं होगा, ये हमें पता है, राइट? लेकिन हमें ये एक पता है कि हम कहते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि इन्फिनिटी इसका टाइम इंटरवल है, तो उसके बाद तो ये रिपीट होगा, राइट? तो हम कहते हैं कि भाई वो फायदा, हमने इसको एक फोर्सफुली ये पीरियोडिक सिग्नल बना दिया, ठीक है? अगर एक हमने इसको फोर्सफुली पीरियोडिक सिग्नल बनाया है, तो हम इसको फिर फोरियर सीरीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सही, फोरियर सीरीज का फार्मूला ये था कि आप किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को उसके सम ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल हार्मोनिक के रिलेटेड सिग्नल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? ठीक है, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में
एक्सप्रेशन को ड्राइव किया था, सही है, कि हम फोरियर सीरीज में पीरियोडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। फिर हमने ये भी कैलकुलेट किया था कि जो एक एक कंपोनेंट है ये किसके बराबर होता है, 1/t समेशन ओवर वन टाइम इंटीग्रल ओवर वन टाइम इंटरवल x ऑफ t टू द पावर j k ओमेगा नॉट t, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास सिग्नल क्या है, x टिल्डे, तो यहाँ पर देखिए मैंने x टिल्डे लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद में हमने ये भी कहा था कि अभी अब हम कहते हैं कि भाई देखें, जैसे जैसे हमारे पास ये t इंक्रीज होता जाएगा तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, रिड्यूस होती जाएगी, और हमारे पास ये जो दो एडजेसेंट सैंपल से इनमें गैप बढ़ता जाएगा, सही है, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, टी हम कहते हैं इन्फिनिटी हो जाएगी, तो ये दोनों सिग्नल तकरीबन हमारे पास जो ये एक इंटरवल ये बिल्कुल एक्स ऑफ टी और एक्स टिल्डे टी एक जैसे हो जाएंगे जब टी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर टी को अगर इन्फिनिटी पुट किया तो इन्फिनिटी अपॉन 2 इज अगेन इन्फिनिटी, राइट। तो यहाँ पर इन्फिनिटी हो गया ई टू द पावर जे के ओमेगा नॉट टी डी टी, ठीक है। ठीक है बेटा, अच्छा अब हम कहते हैं कि भाई इसको अब जहन में रखें, ये जो हमने इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है इसको जहन में रखें कि हमारे पास ए के जो बराबर होता है 1/t एक्स ऑफ टी ई टू द पावर जे के ओमेगा नॉट टी, सही। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है आपको नजर आ रहा है रबर का शेप साइन। सर आवाज अटक रही है सर। आपके पास नेट बेटा स्लो है, बाकियों की ठीक जा रही है आवाज। जी सर। अब इसको जहन में रखिएगा, ये जो हमारे पास इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अब देखिए हमने कहा कि अगर हम टी ए के को रिप्रेजेंट करें एक्स ऑफ जे ओमेगा के साथ, कंटिन्यूस वेरिएबल के साथ, तो ये हमारे पास एक्स ऑफ जे ओमेगा अब हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, एक्स ऑफ टी टू द पावर जे ओमेगा टी, सही है। हमारे पास कंटिन्यूस टाइम वेरिएबल आएगा, अब के खत्म हो गया, सिर्फ हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल आ गया। अच्छा अब हम कह रहे हैं कि ए के जो हमारे पास था, ए के में क्या था, ए के किसके बराबर था, 1/t एक्स ऑफ टी ई टू द पावर जे के ओमेगा नॉट टी। अब देखें अगर हम यहाँ पर ओमेगा की जगह के ओमेगा नॉट पुट करें तो ये इक्वेशन हमारे पास बिल्कुल इस जैसी बन जाएगी, इस इक्वेशन जैसी, सही है। तो हम लिख सकते हैं कि भाई हमारे पास जो ए के होता है 1/t एक्स ऑफ, इस इक्वेशन में अगर ओमेगा की जगह जे के ओमेगा नॉट पुट कर दें तो हमारे पास बिल्कुल यही इक्वेशन, ये इक्वेशन वाली बन जाएगी। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास ए के कोएफिशिएंट्स अवेलेबल हैं। ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ओरिजिनल इक्वेशन ये थी, राइट। तो ओरिजिनल इक्वेशन में अगर एक एक की वैल्यूज पुट कर दें तो आपके पास क्या मिल जाएगा, एक्स टिल्डे ऑफ टी इज इक्वल टू 1/t एक्स ऑफ जे के ओमेगा नॉट टी ई टू द पावर जे के ओमेगा नॉट टी, राइट। अब देखें ये जो हमारे पास t है ये किसके बराबर होता है, 2π/ओमेगा नॉट, सही है। तो अगर इसको हम यहाँ पर t का वैल्यू पुट करें तो वो क्या हो जाएगा, 2π/ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट मल्टीप्लाई होगा और 2π यहीं पर रहेगा, सही है। तो हमने 2π क्योंकि हमारे पास एक कांस्टेंट कोएफिशिएंट इसको हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ पर 1/2π लिख दिया, ठीक है। एक्स ऑफ जे के ओमेगा नॉट ई टू द पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट, राइट। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई देखिए जो ओमेगा नॉट है जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा इस ओमेगा का जो वैल्यूज होंगे सक्सेस से वो बहुत क्लोज आते जाएंगे, सही है। हम कहते हैं जब t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये हमारे पास जो समेशन हो जाएगा वो किस में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रल में, सही है। तो यहाँ पर देखें हमने इस समेशन को इंटीग्रल में चेंज कर दिया, राइट। यहाँ पर समेशन को हमने इंटीग्रल में चेंज कर दिया और अब हमारे पास यहाँ पर क्या था, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रल करेंगे इंस्टेड ऑफ समेशन और विथ रेस्पेक्ट टू डी ओमेगा। यहाँ पर मैंने डी ओमेगा नहीं लिखा, यहाँ पर राइट। तो हमारे पास ये जो पहली इक्वेशन थी एक्स ऑफ जे ओमेगा इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, इसको हम क्या कहते हैं, एनालिसिस कहते हैं, सही है। क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं, किसी भी टाइम डोमेन सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम फाइंड कर रहे होते तो इसको एनालिसिस कहते हैं। और सिंथेसिस हम क्या कह रहे होते हैं कि भाई हमारे पास जो सारे हमारे पास जो वैल्यूज थे उनको हम सम अप करके एक दोबारा एक्स ऑफ टी या टाइम डोमेन सिग्नल बना रहे हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन यूज होती है किसके लिए,
एक मिनट में लाइट चली गई तो मैं हॉट स्पॉट से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, ताकि अगर दरमियान में वाईफाई चली जाए तो मैं फिर भी कनेक्टेड रहूँ। बेटा आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। यस सर, आ रही है। ठीक है, क्योंकि अभी लाइट चली गई तो वाईफाई बंद हो जाएगा, तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा। तो जब भी हमें फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम फाइंड करना होगा तो हम यही क्वेश्चन यूज करेंगे। और हमेशा मैंने पहले भी कहा था कि एक बात याद रखें कि जब भी आप ये कैलकुलेट कर रहे होते हैं अपना फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, जब भी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की जब भी बात कर रहे होते हैं, तो ये मैंने क्या कर दिया, तो यहाँ से क्यों गया? अच्छा ठीक है, तो जब भी हमें फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो ये आप हमेशा ये बात याद रखें, जब भी हम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जब टाइम डोमेन कैलकुलेट कर रहे हैं तो कोई भी ट्रांसफॉर्म यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसको आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि। और जब भी आप किसी भी टाइम डोमेन की तरफ जा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको 1/2 पाई नजर आएगा, अब के बाद सही है। और जब फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में जा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको ये 2 पाई नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद भी कर सकते हैं, इसको मेमोराइज कर लें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि भाई अगर हमारे पास कोई टाइम डोमेन सिग्नल हो एपीरियोडिक, तो उसका हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0। अब इसको अगर हम प्लॉट करें तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि ऐसा हो क्यों रहा। अच्छा, तो ये हमारे पास अगर एक सिग्नल है, ठीक है, तो हम अगर इसका अब हमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट फाइंड करना है, अब देखें ये सिग्नल किस तरह आपको नजर आएगा, ई टू पावर माइनस ए टी, ये कुछ सिग्नल इस तरह बनेगा। सही है, ये नेगेटिव साइड एग्जिस्ट करता है, लेकिन यू ऑफ टी की वजह से ये 0 हो गया नेगेटिव साइड। ठीक है, तब जे ओमेगा किसके बराबर होगा, ये फार्मूला हमारे पास जो है कैलकुलेट करने का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एपीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, अब हम एपीरियोडिक सिग्नल को भी कर सकते हैं कैलकुलेट। तो अगर हम यहाँ पर एक्स ऑफ टी का वैल्यू पुट कर दें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस टी टू द पावर माइनस, इंफिनिटी से 0 को खत्म कर देगा। और अब ये 0 ए टी टू द पावर माइनस सर टी आपकी ओमेगा आवाज टी सर कट रही है अब सर। बेस सेम तो पावर कट रही है आवाज। जी सर। चलें, जब तक फिर वाईफाई समझ में चल नहीं रही है तो फिर हम उसी पे। समझ में नहीं आया सर ये। अब ठीक आ रही है आवाज? जी सर सर, अब सही आ है रही सर। है। जी अच्छा, सर, आ जब रही तक है। फिर अब वाईफाई चलता है तब तक हम कंटिन्यू करते हैं, फिर इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब देखें, अब हमारे पास ये सिग्नल है, उसको हम इस फार्मूला में अगर इनपुट कर दें, सही है, देखिए यहाँ पर ई टू द पावर माइनस ए टी को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक्स ऑफ टी की जगह लिख दिया। फिर हमने अब यू ऑफ टी जो है, यू ऑफ टी अब कहाँ से लेकर कहाँ तक शुरू हो रहा है, 0 से लेकर, सही है ना, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो यहाँ पर लिमिट चेंज हो गई, 0 टू इन्फिनिटी हो गई। अब ये बेस सेम में तो पावर ऐड हो जाएंगे, ये पावर अगर ऐड हो गए, सही है, तो उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, हम ई टू द पावर माइनस ए प्लस जे ओमेगा टी का इंटीग्रल फाइंड करना चाहते हैं। तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, डिवीजन को हम बाहर ले गए। अब इसको अगर हम सॉल्व करें इंटीग्रल को तो किसके बराबर होगी, ई टू द पावर माइनस ए प्लस जे ओमेगा टी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। लिमिट पुट करेंगे तो ये ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हमारा क्या होता है 0, और ई टू द पावर 0 हमारे पास क्या होता है 1।
तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट जो होगा 1/a प्लस जे ओमेगा होगा। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा इंटीग्रल है जो मैंने सॉल्व किया है, आप इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसका मैग्नीट्यूड और फेज प्लॉट हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा। अब यहाँ से देखें आपको पता चल सकता है कि इसका मैग्नीट्यूड और फेज प्लॉट क्या होगा। इसका मैग्नीट्यूड होगा 1/a² प्लस ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट, सही है। और इसका जो फेज प्लॉट होगा वो क्या होगा, माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ ओमेगा ओवर ए, सही है। तो अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल ओमेगा का वैल्यू 0 पुट करें तो आपको यहाँ पर मैंने ड्रा किया हुआ, हाँ अच्छा देखें यहाँ पर देखें, अगर हम ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करें मैग्नीट्यूड में तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा 1/a, राइट। अगर इसको स्क्वायर कर दें मैग्नीट्यूड को तो क्या होगा a² प्लस ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट। अब ओमेगा का वैल्यू 0 है तो 1/√a², तो स्क्वायर और अंडर रूट तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ 1/a बचेगा, तो ओमेगा पर हमारा वैल्यू ये हुआ। अच्छा अगर a यहाँ पर पुट करें तो a² प्लस a² क्या हो जाएगा 2a²। अब उसको अंडर रूट अगर सॉल्व करें तो अंडर√2 मल्टीप्लाई बाय a होगा, तो अंडर√2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 मल्टीप्लाई बाय a, और फिर उसको रेशनलाइज करेंगे, अंडर√2 को मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड भी करें तो आपके पास ये आउटपुट मिलेगा, ठीक। तो -a पर इसका वैल्यू होगा और ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह रिड्यूस होगा। अब देखें एक बात इसमें सोचें कि हमने कहा था कि जो हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का वो अपीरियोडिक होता है, तो यहाँ पर देखें ये स्पेक्ट्रम में कोई भी रिपीटेशन का चांस हमें नजर नहीं आ रहा, सही है। लेकिन अगर ये डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म होता तो यहाँ पर आपको फिर पाई के बाद रिपीटेशन नजर आती, ठीक। अब इसकी एंगल माइनस टेंजेंट ओमेगा ओवर ए है, अब इसको आप प्लाट करेंगे तो वो इस तरह होगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक खत्म होता है। हमने अब आज सिर्फ ये डिस्कस किया कि फिल्टर्स क्या होते हैं, हम अगर किसी पर्टिकुलर डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को पास करना चाहते हैं और बाकी को रिजेक्ट करना चाहते हैं तो हम फिल्टर्स यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के डिस्क्रीट टाइम फिल्टर्स है, जिसमें हमने मूविंग एवरेज फिल्टर को देखा। अब मूविंग एवरेज फिल्टर से हमने डिफरेंस फिल्टर से हमने लो पास और हाई पास डिज़ाइन करना सीखा। उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास जो फोरियर सीरीज़ की एक लिमिटेशन है वो ये है कि भाई फोरियर सीरीज सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए है। तो अब पीरियोडिक सिग्नल्स का भला क्या करें, उनको अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर हमने एनालाइज करना हो तो उसके लिए हमारे पास जो ट्रांसफॉर्म होती है वो क्या होती है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। और फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन होती है यूजिंग दिस फार्मूला, राइट। ये हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है। अगर हमें फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम फाइंड करना हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम अवेलेबल हो और हम टाइम डोमेन फाइंड करना चाहें तो हम फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, सही है, जिसको हम सिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको एंड करते हैं। अगर किसी को सवाल हो तो वो पूछ ले। कहेंगे कोई सवाल हो जाए तो पूछो।